Paper number 3, title Inorganic Chemistry 1, Stereochemistry, Metal Ligand Equipedia and Redox Mechanism of Transition Metal Complex. Module number 30, Mechanism of Redox Reaction, Outer Sphere Reactions. Table of Content, Learning Outcome, Introduction to Mechanism of Redox Reaction and Outer Sphere Reaction, Mechanism of Outer Sphere Redox Reaction, Summary. Learning outcome. Definition why these are named outer sphere electron transfer. Definition कि इसको outer sphere electron transfer reaction क्यों बोलते हैं. No ligand bridging ordinary electron transfer. कोई भी bridging ligand नहीं होता है, ordinary electron transfer होता है. The outer sphere reaction may involve same metal and ligand or different. Outer sphere reaction में same metal और ligand या फिर अलग अलग इन्वॉल्व होता है. The oxidation state of reactive metal ion must be different. तो reactive metal ion का जो oxidation state है वो काफ़ी अलग है. Same metal and ligand undergoing electron transfer are called self-exchange redox reaction. Self-exchange redox reaction क्या होता है? Same metal और ligand electron transfer के अंदर चला जाता है, उसको बोलते हैं सेल्फ एक्सचेंज रेडॉक्स रिएक्शन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ET rate is faster than substitution ligand. Nevertheless, ET is rate determining step. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो रेट है, स्पीड है, वो ज़्यादा फास्टर है ligand का सब्स्टिट्यूशन से, और वैसे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स है. इंट्रोडक्शन टू mechanism of redox reaction and outer sphere reaction. तो redox reaction का mechanism को introduce करेंगे. outer sphere reactions. The metal complex which do not go through substitution reaction involve outer sphere electron transfer reactions. तो metal complex जो substitution reaction में नहीं रहता है, उसमें outer sphere electron transfer involve होता है. It means none of the bond are broken or formed in either of the metal complex reactant. इसका मतलब ये है कोई भी bond जो है टूटा हुआ नहीं है या फॉर्म नहीं हुआ metal complex reactant का. In other words, this reaction includes complementary change in the oxidation state of both the metal through a pathway where the ligand does not undergo bridging mode in the coordination sphere of the complex. तो दूसरे वर्ड में रिएक्शन जो कॉम्प्लीमेंट्री चेंज है दोनों मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट में पाथवे के थ्रू, जहाँ पे मेटल जो है वो ब्रिजिंग मोड में नहीं जाता है कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन स्फीयर में. देयरफॉर कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट इन आउटर स्फीयर रिएक्शंस स्टे इंटैक्ट. तो इसलिए मेटल कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट का जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है आउटर स्फीयर रिएक्शन वो इंटैक्ट रहता है. The favorable factor for an outer sphere reaction is the inertness of the complex towards substitution over the time needed for the redox reaction to occur. तो outer sphere reaction के लिए जो favorable factor जो है वो है complex का inertness, जो substitution की तरफ रहता है और जैसे जैसा टाइम ज़रूरत पड़ता है वैसे वैसे रिडॉक्स रिएक्शन होते रहता है. MA N+L+LX ऑक्सीडेंट रिएक्ट करते हैं M⁻B+Ly ताकि देख सके M⁻A⁻LX रिड्यूस्ड, M⁻B+L⁻Ly ऑक्सीडाइज. एग्जाम्पल ऑफ आउटर स्फीयर रिएक्शन Fe2CN6 4- रिएक्ट करते हैं इरिडियम 4Cl6 2- के साथ ताकि Fe3CN6 3- और इरिडियम 3Cl6 3- दे सके. FeMe2 bipyrydyl tridentate dimethyl bipyrydyl iron 2+ रिएक्ट करता है FeBrPy3 3+ के साथ tridentate bipyridine iron 3+ के साथ ताकि FeMe2bipy3 3+ और FeBrPy3 2+ फॉर्म हो सके. रेट के
FeMe2 BiPy3 2 plus or FeBiPy3 3 plus. This reaction are generally quite fast, and before Lx or Ly exchange or bridging occurs, redox process takes place. तो रिएक्शन जो है ये बहुत ही फास्ट है, तो Lx या फिर Ly का एक्सचेंज या फिर ब्रिजिंग होता है, redox process takes place होता है. The coordination speed of the complex remain intact because reactant do not interact significantly with each other during the electron transfer, that is through space diffusion control. तो कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन स्पीड जो है वो इंटैक्ट नहीं रहता है क्योंकि रिएक्टेंट जो है इंटरेक्ट नहीं करता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के टाइम में एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करता, मतलब स्पेस के थ्रू डिफ्यूजन कंट्रोल के थ्रू इंटरेक्ट नहीं करता. ऑक्सीडेशन अपने इलेक्ट्रॉन देता तो रिडक्शन होता है. एग्जाम्पल ऑफ सच बिहेवियर सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन बिटवीन होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स. तो होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के बीच में जो सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है. Ml6 plus 2 plus react with Ml6 3 plus. Ml6 3 plus plus Ml6 2 plus. तो एक हेक्सालिगैंड मेटल को अपना एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ा और दूसरा मेटल हेक्सालिगैंड 2 प्लस ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है सेम रिएक्टेंट के बीच में. द आउटर स्पीयर रेट फॉर सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन आर. तो सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन के लिए आउटर स्पीयर रेट्स क्या रहेगा? मेटल Ln लिगैंड Dn स्पिन स्टेट के L पर मोल पर सेकेंड. आयरन के साथ कौन सा लिगैंड रहेगा? BiPy3 फिर Di5 लो स्पिन D6 लो स्पिन के जो रहेगा 10⁶ से ज़्यादा रहेगा. Fe में H2O6 रहेगा तो D5 हाई स्पिन D6 हाई स्पिन के जो रहेगा 3 रहेगा. फिर ऑस्मियम का Bi बाइपिरिडाल 3 तो D5 लो स्पिन D6 लो स्पिन ग्रेटर देन 10⁶. कोबाल फिन 3 तो D6 लो स्पिन D7 हाई स्पिन 40. कोबाल्ट En3 रहेगा तो D6 लो स्पिन D7 हाई स्पिन ग्रेटर देन 10⁻⁴. मतलब जल्दी होगा, फास्ट रिएक्शन होगा. कोबाल्ट NH3 D6 लो स्पिन D7 हाई स्पिन more than 10⁻⁶. The representative example of self exchange reaction is. तो सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन का रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल है रुथेनियम अमाइन 2 प्लस रिएक्ट करता है रुथेनियम हेक्सामीन अमाइन 3 प्लस के साथ K11 8.2 10⁻² पर मोल पर सेकेंड. रुथेनियम NH3 3 प्लस रिएक्ट करता है रुथेनियम NH3 2 प्लस के साथ ताकि रुथेनियम NH3 3 प्लस 2 प्लस E0 इक्वल टू 0.0514 वोल्ट दे सके. wherein ruthenium and ruthenium star isotopes delta G0 is equal to 0. ठीक है, तो ये दोनों आइसोटोप्स जो है रुथेनियम और रुथेनियम आइसोटोप्स उसका गिब्स फ्री एनर्जी है 0. स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी 0 है. अदर सिमिलर सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन आता है इसी तरीके से. ऐसा सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन जो है कोबाल्ट H2O6 2 प्लस रिएक्ट करते हैं क्रोमियम H2O6 3 प्लस के साथ. K22 छोटा रहता है 2.5 10⁻⁻⁴ मीटर पर मोल पर सेकेंड. तो कोबाल्ट H2O6 3 प्लस रिएक्ट करता है और Cr H2O6 2 प्लस रहता है. तो कोबाल्ट NH3 3 2 plus E0 is equal to 0.058 volt. Despite all situation and requirement for outer sphere reaction, the lower energy barrier notwithstanding can be yet presented by an outer sphere pathway. तो
सिचुएशन काफ़ी और रहता है। आउटर स्पीयर रिएक्शन के लिए लोएस्ट एनर्जी बैरियर जो है होता नहीं है, वो प्रेजेंट होता है आउटर स्पीयर पाथवे की वजह से। दिस क्राइटेरियन एम्बिग्विटी इज ऑब्जर्व इन मेटा एक्वो कॉम्प्लेक्स इन विच वन ऑफ दिस इज लेवल इन टर्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन और रिडॉक्स रिएक्शन टाइम स्केल। तो यहाँ पे एम्बिग्विटी ये है, मेटल एक्वो कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्व होता है जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में लेवल के टर्म में रहता है, रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर टाइम स्केल है। क्रोमियम H2O6 2+ रिएक्ट करता है क्रोमियम H2O6 3+ के साथ K22 छोटा रहता है 2.5 × 10⁻⁵ मोलर पर सेकेंड। तो क्रोमियम H2O6 3+ रिएक्ट करता है क्रोमियम H2O6 2+ के साथ। For such reaction, indirect arguments may be raised for a while, that is, outer sphere rate of reaction for oxidation of chromium hexaequo 2+ complex appear to be typically 10 to 60 times slower related to the well-known outer sphere reaction involving chromium hexaequo 2+ employing same oxidant. तो ऐसी ही रिएक्शन जहाँ पे इंडा आर्गुमेंट होता है वो बढ़ता है, तो आउटर स्पीयर रेट जो है इस रिएक्शन का, उसका क्रोमियम H2O6 2+ का ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्स जो है 10 to 60 टाइम्स लोअर रहता है और रिलेटिव रहता है आउटर स्पीयर रिएक्शन से जहाँ पे क्रोमियम H2O6 2+ जो है सेम ऑक्सीडेंट रहता है। द रिलेटिव रेट्स ऑफ सेल एक्सचेंज रिएक्शन और क्रोमियम H2O6 3+ क्रोमियम H2O6 2+ redox couple versus NH3 5 ruthenium H2O3+ NH3 5 ruthenium H2O2+ couple is fairly informative because the higher oxidation state 3+ charge complex for each couple is transformed to the hydroxyl complex. तो सेल एक्सचेंज रिएक्शन का रिलेटिव रेट क्रोमियम H2O6 3+ और क्रोमियम H2O6 2+ जहाँ पे रिडॉक्स कपल जो रहता है वर्सेस NH3 5 होते हैं H2O3+ NH3 5 होते हैं H2O2+ कपल फेयरली इंफॉर्मेटिव रहता है क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ चार्ज कॉम्प्लेक्स हर कपल के लिए ट्रांसफॉर्म होता है हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स में। द मैक्सिमम रेट ऑफ सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन फॉर द स्पेसिफिक chromium 3+ and chromium 2+ couple is 2 × 10⁵ per meter per second. However, for the ruthenium 3+ or ruthenium 2+ redox couple, it has not been directly measured. तो सेल एक्सचेंज रिएक्शन का मैक्सिमम रेट जो है स्पेसिफिक क्रोमियम 3+ और क्रोमियम 2+ कपल के लिए 2 × 10⁵ मोलर पर सेकेंड। तो रुथेनियम 3+ रुथेनियम 2+ कप रिडॉक्स कपल जो है वो डायरेक्टली मेजर नहीं होता। Although rationally the specific rate for ruthenium 3+ ruthenium 2+ redox couple can be considered close to that for ruthenium NF3 6 3+ ruthenium NF3 6 2+, that is 1 is multiplied 10⁻³ per molar per second। तो रुथेनियम 3+ रुथेनियम 2+ रिडॉक्स कपल का स्पेसिफिक रेट के लिए क्लोज नहीं रहता है रुथेनियम NH3 6 3+ और रुथेनियम NH3 6 2+ के लिए, जिसका 1 × 10⁻³ per meter per second होता है।